શ્રદ્ધા કેમેરો ખોલી શકે છે? હા. નમો અરિહંસાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોये સવ્વસાહૂણમ। पंच परमेष्टि लेसन हम देख रहे हैं और उसमें साधु परमेष्टि का स्वरूप देख रहे थे। उनके 28 मूल गुणों पर हम चर्चा कर रहे थे। 28 ग्रुप में जो 5-5 ऐसा कौन बोल पाएगा? कोई बोलेगा? याद है किसी को? हाँ, श्रद्धा बोलो। हाँ बोलो श्रद्धा। वॉइस फुल चला जाएगा। महाव्रत, 5 महाव्रत, 5 हाँ समिति, 5 हाँ इंद्रिय विजय, 6 हाँ आवश्यक અને 7 શેષ हाँ, ગુણ। બહુ સરસ બહુ સરસ। હવે 5 મહાવ્રતના નામ કોણ બોલશે? બેન બોલશે? 5 મહાવ્રત હું નહીં, બોલું? હા ટ્રાય કરો। હા હા બોલો સત્યાનું મીનાબેન। વ્રત, હા અરે સત્યાનું મહાવ્રત, અહિંસાનું મહાવ્રત, અચૌર્ય મહાવ્રત, ઘણું નહીં લાગે। મહાવ્રત, હા સીધું મહાવ્રત। હા મહાવ્રત મહાવ્રત પછી હા 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 બરોબર છે, બોલો। બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રત, બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રત અને પરિમાણ અરે અને પરિમાણ અપરિગ્રહ મહાવ્રત। અપરિગ્રહ અપરિગ્રહ, મહાવ્રત, જો હા અપરિગ્રહ, પરિગ્રહમાં પરિમાણનો મતલબ થાય છે મર્યાદા બાંધવી। તો પરિગ્રહમાં બરાબર, મર્યાદા બાંધે તો અણુવ્રત થશે, બરોબર છે। હા હા અણુવ્રત હા એટલે હા શેષ ત્યાગ છે, થોડોક નાનું ત્યાગ છે, સૂક્ષ્મ, હા બરોબર છે। હા બરોબર, બંને હા આન્સર સાચા છે। હવે 5 સમિતિ આવશે, બરોબર। સમિતિ 1-2 કોઈ બોલી શકશે? મામી 2-3 સમિતિના નામ એકાદ એક મીનાબેન બોલશે, ચલો। મામી કેટલા બોલશે? ઇરિયા સમિતિ, ઇરિયા હા સમિતિ, મીનાબેન બોલાવી રહ્યા સમિતિ। મામી અનમ્યુટ કરો। एरिया હા હા समिति, હા બોલો હવે। હા एरिया બીજી શું બોલ્યા? समिति, હા પછી બીજી कृष्णा બોલવા समिति, સંબંધી। भाषा समिति, હા ભાષા સમિતિ। બીજું? कृष्णा હા समिति, ચેતન કા? હા ત્રીજી એશના, ઈરિયા ભાષા એશના, હા 3 થઈ। પ્રતિષ્ઠાપન, પ્રતિષ્ઠાપન 4 થઈ, બરોબર છે। આદાન હા નિક્ષેપણ 5, हाँ, બરોબર છે। આદાન ફરીથી નિક્ષેપણ, આપણે કહીએ, આદાન નિક્ષેપણ એટલે લેવું મૂકવું, પ્રતિષ્ઠાપન મૂકવું, એટલે છોડવું આપવું, બરોબર। છોડવું, હા અને ઈરિયા એટલે ચાલવું, જોઈને ચાલવું, ચાલે છે એ જોઈ સંબંધી। ભાષા એટલે બોલવા સંબંધી। એશના એટલે બોલવા સંબંધી। અને પ્રતિસ્થાપન અને આદાન નિક્ષેપણ, બરોબર છે। તો આ 5 સમિતિ થઈ ગઈ। પછી 5 ઇન્દ્રિય વિશે તો સરળ છે, 5 ઇન્દ્રિયો પર વિજય પ્રાપ્ત કરી છે, બરોબર છે। એના નામ પ્રમાણે રસના ઇન્દ્રિય પર વિજય, સ્પર્શ ઇન્દ્રિય પર, એ રીતે, બરોબર। 15 થઈ ગઈ। અને હા અ, છ આવશ્યક, आवश्यक, છ सात આવશ્યક, शेष, આવશ્યક, હા હા, सात शेष, 7 સામયિક, શેષ, હા હા। સ્વાધ્યાય, હવે 7 શેષ, ચેતન તમે બોલી શકશો? 7 શેષ कौन? તમે? अनिला मम्मी ने किया ना, मन कीधा वगैरह। હા મામી બોલો, ચલો। મામી મામી 1, 2, 3 જેવી બોલતા હોય બોલો, ચલો મામી બોલો। श्रद्धा ने बोल, 4 श्रद्धा बोल से, 4 अनिला मम्मी बोल से, 7 3 अनिला मम्मी, પણ 7 જ છે, 7 જ છે પણ। 4 ને 3 अनिला मम्मी मोटा છે એટલે એમને 4 ને શ્રદ્ધા નાની છે એટલે 3। કઈ નહીં, ચલો શરૂઆત કરો। મામી 1, 2 બોલો, ચલો સહેલા છે। चेतन भाई नग्न बोला पहला। સ્વરૂપ, નગ્ન नग्नपन, સ્વરૂપ, दंत जोवन, હા નગ્નપન, નગ્નતા, હા અદંત અદંત ધોવન, ધોવન, અદંત ધોવન, અદંત ધોવન, હા હા પછી दंत પછી जोवन, આહાર લેવો એક ટાઈમ, એક ટાઈમ ભોજન, હા હા અને એક ઉભા एक પડખે पड़के ઉભા સૂવું, सुवानो, ઉભા ઉભા ભોજન, હા પછી ચેતન શું બોલ્યા? एक पड़के सुवानो, હા प्रतिक्रमण, સુવા સંબંધી, હા જમીન પર એક પડખે સૂવું, હા પ્રતિક્રમણ આવશ્યકમાં આવશે, ना બરોબર। आवे में, અહીંયા આપણે 7, હા। હવે હજુ શું રહી ગયું? વિચારો વિચારો વિચારો। मेन रही गई કેશ थी લોજ,
કેસલોડ. એટલો જ. અને અદંત હમ. ધોવન, દાંત નથી ધોતા. અચ્છા, એ આવી ગયું. તો અસ્નાન, બરોબર. જો બહુ સરળ છે. નગ્નતા, પછી સ્નાન નથી કરતા, અદંત ધોવન, દાંત નથી ધોતા, કેશલો જ કરે છે. ભોજન સંબંધી બે છે. એકવાર ભોજન કરે છે ને ઉભા ઉભા હાથમાં ભોજન કરે છે. અને સુવા સંબંધી એક છે, જમીન પર પીછલી રેનમાં થોડુંક સુવે છે. બરોબર. તો આ રીતે 7 શેષ છે. અને મામી બોલ્યા હતા પ્રતિક્રમણ, એ છે 6 આવશ્યક. બરોબર. તો જો હું છંદ બોલું છું, સમતા સંહારે એટલે સામાયિક. સમતા સંભારે સ્તુતિ ઉચ્ચારે, વંદના જીન દેવકો, નિત કરે શ્રુતિ રતિ. શ્રુતિ એટલે શાસ્ત્ર, એમાં પ્રીતિ છે એટલે સ્વાધ્યાય કરે છે. નિત કરે શ્રુતિ રતિ, કરે પ્રતિક્રમણ, તજી તન અહમેવકો. શરીરનું રાગ છોડીને એને કહેવાય કાયોત્સર્ગ. બરોબર છે. તો આ રીતે 6 આવશ્યક જે રોજે રોજ એ કરે છે. બરાબર? આ તો આપણે યાદ કર્યા. હવે આપણે જોઈ રહ્યા હતા અહિંસા મહાવ્રતનું સ્વરૂપ. હવે આપણે એમાં જોયું કે જે 5 મહાવ્રત છે એના એ કેટલા પ્રકારથી ત્યાગી છે? તો 108 પ્રકારથી ત્યાગી છે 5 પાપના. બરોબર. અને એટલે એ મહાવ્રતી છે. જો 5 પાપના થોડા ત્યાગી હોય ને તો એ અણુવ્રતી હોય, એટલે શ્રાવક હોય પંચમો. પણ પૂરા ત્યાગી છે એટલે પાપ 0 થઈ ગયા છે તો મહાવ્રતી છે. બરોબર છે. અહિંસા મહાવ્રત, હિંસા 2 પ્રકારે થાય. એક દ્રવ્ય હિંસા, એક ભાવ હિંસા. દ્રવ્ય હિંસા એટલે સામેવાળી વ્યક્તિને નુકસાન થવું, મરવું, દુખી થવું, કષ્ટ પહોંચવું, વાગવું આપણા નિમિત્તથી, તો એ દ્રવ્ય હિંસા થઈ. અને એવું કઈ ન થાય પણ જીવમાં એવા પરિણામ થવા રાગદ્વેષના, એ ભાવ હિંસા છે. બરોબર છે. તો મુનિરાજ આ બંને પ્રકારની હિંસાથી રહિત છે. આપણે જોયું હતું 108 બી કેવી રીતે મન વચન કાયથી, એટલે કોઈ પણ હિંસા. જો આપણને હિંસા એટલે ક્યાં દેખાય છે? કોઈને મોટા જીવને મારી નાખ્યો એટલે. પણ તમે જોજો, હું તમને એક સરસ વાત કહું કે જો 28 મુરુગુણ છે ને એમાં મુખ્ય છે 5 મહાવ્રત. અને એનું પાલન કરવા માટે બાકીના જે 22 છે ને એ એને સપોર્ટમાં છે. તો સમજો, ઇરિયા સમિતિ તો શું છે કે જોઈને ચાલે છે કે કોઈ જીવજંતુની હાનિ ન થાય. બરોબર. તો એમાં શું થયું? અહિંસાનું પાલન. બરોબર છે. પછી ભાષા સમિતિ, જો ભાષા સમિતિમાં હિતમિત પ્રિય વચન નહીં હોય તો એવા વચનો ન બોલે કે જેનાથી કોઈની હિંસા થઈ જાય, કોઈને દુઃખ પહોંચી જાય, કોઈનું ખરાબ થઈ જાય. બરોબર છે. તો એ ભાષા સમિતિ, એનો મતલબ શું? કોઈનું બુરું ન થાય એવું વચન બોલવા, એટલે અહિંસા મહાવ્રતનું પોષણ થયું. બરોબર છે. પછી ભોજન કરે છે તો એમાં યજ્ઞ સમિતિમાં 46 દોષ ટાળીને, 32 અંતરાય ટાળીને, ઘણા બધા નિયમોની વચ્ચે શુદ્ધ ભોજન કરે છે. તો એની પાછળ શું પડશે? કે અહિંસા તો ચોક્કસથી પડશે. બરોબર છે. તો એ અહિંસાનું પોષણ કરે છે. પછી આદાન નિક્ષેપણ અને પ્રતિષ્ઠાપનમાં બી જોઈને મૂકવું, જોઈને લેવું, મલમૂત્રનું જોઈને ત્યાગ કરવો. તો ત્યાં કોઈ જીવજંતુની હિંસા ના થાય, મતલબ અહિંસાનું ત્યાગ. મતલબ તો કેવું છે કે સામાન્ય એમ કહી દેવામાં આવે ને કે અહિંસા મહાવ્રતનું પાલન કરવું, તો આપણને બહુ ખબર ના પડે કોને મારીએ છીએ આપણે, કે કોઈને મારીએ છીએ. બરોબર. પણ ક્યાં ક્યાં હિંસા થઈ રહી છે એ બતાવવા માટે 5 સમિતિ એને સપોર્ટ, કે ભાઈ ખ્યાલ ના આવતો હોય તો જો જોઈને ચાલવું પડશે, આ રીતે બોલવું પડશે. બરોબર છે. ગુજરાતી આવી ગયું ને? ઠીક છે, ગુજરાતી છે. तो ऐसे तो इस प्रकार से अहिंसा महाव्रत के सपोर्ट में बाकी के 4 महाव्रत भी है, वो भी मैं बताती हूँ। और 5 समिति। अच्छा, इंद्रिय विजय, इंद्रिय विजय में कौन सी अहिंसा का पोषण होता है? तो देखो, स्पर्शन इंद्रिय में अच्छा बुरा नहीं लगना वगैरह में भी भाव अहिंसा है ना। राग द्वेष की उत्पत्ति होगी, ये अच्छा है ये बुरा है, तो ये भाव हिंसा हो गई। तो 5 इंद्रिय के विजय में, जैसे रसना इंद्रिय के विजय, कि भाई आज अच्छा भोजन मिल गया या आज अच्छा भोजन नहीं मिला, रूखा सूखा मिल गया, है ना, ऐसा होना ये राग द्वेष है। और राग द्वेष वो भाव हिंसा है। तो दोनों हिंसा से रहित है। तो 5 इंद्रिय के विजय होना ये भाव अहिंसा को सपोर्ट करता है ना। मतलब भाव हिंसा ना हो जाए, इसके लिए 5 इंद्रिय पर विजय प्राप्त करते हैं। जो है ना, तो कहीं ना कहीं कोई दोष लग गया है, उसके लिए प्रतिक्रमण, उसके लिए सामायिक, है ना, तो ये सब जो है वो भी उसके
होता नहीं, यानी कपड़े बिना हिंसा के बनते नहीं। फिर कपड़े पहनेंगे तो धोने पड़ेंगे, धोने पड़ेंगे तो उसके लिए फिर धोना पड़ेगा। बर्तन के थैला चाहिए, धोने के लिए साबुन चाहिए, पानी के लिए बकेट चाहिए, सुखाने के लिए क्लिप चाहिए, डोरी चाहिए। ये सब परिग्रह हो जाएगा, है ना। इसलिए कपड़े नहीं पहनते, उसमें भी अहिंसा का, अहिंसा का पोषण और अपरिग्रह का पोषण, क्योंकि परिग्रह भी हो जाएगा। इतनी सामग्री रखेंगे तो फिर उसके लिए और एक घर चाहिए, सब पूरा संसार खड़ा हो सकता है ना। चाह लंगोटी की दुख भाले, तो नग्नता। फिर केश लूज क्यों करते हैं, कि केश लूज करने में मैं एक तो पर ये अब आगे आगे देखेंगे, मुझे तो शॉर्ट में एक एक को हमें अच्छे से देखना है। अभी तो मैं शॉर्ट में ये बता रही हूँ कि ये सारे है ना 22, वो 5 को सपोर्ट करते हैं, और 5 में भी जो बाकी के 4 है ना वो अहिंसा को सपोर्ट करते हैं। देखो, अहिंसा पालना है, इतना कहने में ये समझ में नहीं आएगा कि चोरी करने में भी हिंसा होती है, इसलिए अचौर्य महाव्रत पालना है। चोरी करने में कैसे हिंसा होती है, कष्ट पहुंचाना ही तो हिंसा है। किसी की चोरी कर लोगे तो सामने वाले को कष्ट होगा, है ना, दुखी होगा, वो उसका माल जाएगा। तो चोरी करना भी हिंसा है। तो अहिंसा महाव्रत के लिए अचौर्य महाव्रत पालते हैं। फिर झूठ बोलने से भी हिंसा होती है, किसी ना किसी को कष्ट पहुंचता है, तो ये भी अहिंसा का सपोर्ट है। परिग्रह हिंसा के बिना उत्पन्न होता ही नहीं, सुशील में भी हिंसा होती है। तो इस प्रकार से मुख्य व्रत है अहिंसा महाव्रत। उसके लिए बाकी के 4 सपोर्ट में 4 महाव्रत भी है, और समिति वगैरह भी उनके सपोर्ट में मोस्टली पाली जाती है ना। इसमें हिंसा में 2 ही भेद समझना है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। दोनों के वो पूर्णतया त्यागी होते हैं, है ना। अब वो कौन कौन की हिंसा नहीं करते, तो 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करते। अब 6 काय क्या है, 6 काय पता है किसी को? 6 प्रकार के जीव पहले आ चुका है ना। एक तो स्थावर, है ना, 5 जो स्थावर होता है, 5 स्थावर, पृथ्वी काय, जल काय, हाँ, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति। तो वनस्पति का ये है। 5 स्थावर की भी वो हिंसा हाँ नहीं करते। यानी जब चलेंगे तो गीले पानी में नहीं चलेंगे, है ना। चातुर्मास के अलावा छोड़ दो, वो मजबूरी, मतलब वो ऐसा है अशक्य अनुष्ठान कि क्या करें, है ना। घर में तो रहना नहीं है, तो फिर बारिश होगी तो गीले में भी चलना होगा, है ना। लेकिन सामान्य परिस्थिति में पानी से बचेंगे, घास से बचेंगे, कहीं पर भी हरा पिंचा पड़ा हो, फूल से पड़े हो तो उस पर नहीं चलेंगे। उस प्रकार से जो बचेंगे वो स्थावर जीव बनता नहीं, और वायु काय का भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनता कि उनकी हिंसा से हिंसा होती हो। वनस्पति काय और पृथ्वी काय का संभव है, तो उससे वो बचते हैं। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव, ये जो है उसे त्रस्त जीव कहते हैं। तो 5 स्थावर और एक त्रस्त, ऐसे 6 प्रकार के जीव हुए शतकाय। काय यानी 6 प्रकार के शरीर वाले जीव, और उनकी हिंसा से मुनिराज बच, परिणाम और क्रिया उनके नहीं देखी जाती। तो इस प्रकार से 6 काय जीवों के हिंसा से बचते हैं, तो द्रव्य हिंसा नहीं हुई। और राग द्वेष, अच्छा मुझे बताओ उनको कितना राग बचा है, कौन बोलेगा? संजलन। कषाय, हाँ शाबाश, है ना। संजलन राग, एक कषाय चौकड़ी बची है। हम्म। और यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसा महाव्रत है तो रागादि भाव रागादि रहे ही नहीं, इसलिए वो भाव हिंसा से भी रहित होते हैं। तो सुनना, संचलन राग इतना कम है, इतना छोटा है, जल में रेखा बनाने बराबर, तो उसको ना बराबर गिना, है ना। कर्णान योग हम्म। पूछे गया, कर्णान योग कहेगा कि राग है थोड़ा, है ना। लेकिन चरणान योग बताएगा कि ना के बराबर है, उसको क्या गिनना, है ना। 100 रुपये मैंने आपसे लिए और आपने मुझे 99 रुपये वापस कर दिए, 1 रुपये में क्या बोलोगे, अरे हो गए अब छोड़ो उसको, क्या, है ना। तो 1 रुपये की गिनती ज्यादा हम नहीं करते। बस ऐसे ही मोस्टली राग चला गया है, सब संजलन राग बचा है, इसलिए उनको हिंसा मात्र में हिंसा भी होती। अब सत्य, देखो सत्य में शायद हम असत्य में भी लिखा थोड़ा सा कि इतना
भी झूठ नहीं बोलते। कितना किसी का हमने दो चार उदाहरण भी लिए, कलंक का उदाहरण भी, जीन्स सेवा के कलंक, छोटा सा झूठ बोला था। जब वो बालक थे, पढ़ रहे थे गुरुकुल में और भाग रहे थे और बौद्ध सैनिक पीछे पड़े थे, तब अकलंक ने ऐसा झूठ बोला कि वो धोबी उनके साथ भागने लगा, है ना। और फिर निकलंक मर गया और धोबी मर गया और अकलंक बच गए थे। तो इतना झूठ बोलने के कारण जीन शासन की इतनी प्रभावना हुई कि लोग बहुत सारे पापों को छोड़ने लगे। तो बहुत बड़ा अहिंसा का पालन हुआ, है ना। ऐसा झूठ श्रावक तो बोलता है। मैंने एक और उदाहरण दिया था, जैसे कोई बैठा है और कोई कसाई अपनी गाय भाग गई है जिसे उसे मारना है, उसको पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा है और गाय आगे निकल गई। वो किसी आदमी के पूछे कि गाय कहाँ गई मेरी, देखी, है ना। तो कोई श्रावक होगा तो ये सोचेगा कि अरे ये इसको मैं बता दूंगा तो वो उसको मार डालेगा, है ना। उससे अच्छा है मैं गलत बता दूं। तो श्रावक तो ऐसा बताएगा कि नहीं इस तरफ नहीं उस तरफ गई, है ना। तो उसका भाव बचाने का है। तो श्रावक तो ये ऐसा असत्य श्रावक की भूमिका में हो सकता है और उसको भला कहा है श्रावक के लिए, क्योंकि श्रावक को अनेक प्रकार का राग है तो बचाने का राग भी विशेष रूप से आएगा। लेकिन मुनिराज इतना भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो क्या उसको मरने देंगे कि नहीं? मुनिराज के पास एक और शस्त्र है ना। मुनिराज गुप्ती धारण करेंगे, 3 गुप्ती आएगा, उसमें मौन रहेंगे, बोलना जरूरी नहीं है। वो किसी से बंधे नहीं है विश्व में, है ना। वो अपने स्वतंत्र है, किसी से बंधे नहीं है, किसी से दबे नहीं है। उनको बोलना हो तो बोले, नहीं बोलना हो तो नहीं बोले, तो जो करना है कर ले। तो वो ऐसा भी असत्य नहीं बोलेंगे जिनके न लेश मृषा, छडाला की पंक्ति है ना। ऐसे सत्य महाव्रत के धारी होते हैं। जल मृण हो बिना दियो गहे। देखो जो पंचम गुण स्थान व्रती श्रावक होता है वो मिट्टी है, पानी है, जैसे तालाब में से, नदी तालाब हो किसी गांव का, किसी व्यक्ति का कुआं हो किसी व्यक्ति का, पानी बिना पूछे ले सकता है, उसमें उसे कोई दोष नहीं लगता। अनुव्रती है ना, तो चोरी का दोष नहीं लगता, है ना। मिट्टी हो किसी के घर के आगे पड़ी हो, किसी की हो, किसी के खेत से लेनी हो, तो बिना पूछे ले लेता है। लेकिन मुनिराज मृण हो बिना, जल या मिट्टी भी बिना पूछे किसी की मालिकी की लेते नहीं है। तो उसे कहते हैं अचौर्य महाव्रत। फिर सील है ना, ब्रह्मचर्य महाव्रत। तो छटाला जी की पंक्ति में दिया है 8-10 सहस्त्र, यानी 8-10 यानी 18 और सहस्त्र यानी 1000। 18,000 प्रकार के शील के दोषों का पालन, दोषों को छोड़ते हैं और शील के गुणों का पालन करते हैं, है ना। तो ये 18,000 कैसे होते हैं? एक एक को गिन गिन के कैसे याद रखते होंगे? क्या उनको ये याद रह जाता होगा कि नहीं? बहुत सरल है, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं होती। वास्तव में तो ये सब सहज, उनको ये उनकी दिनचर्या है। हमें उठते से ही कैसे अपनी दिनचर्या याद आती है, उसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता। ऐसे ही ये उनकी दिनचर्या है, इनकी लाइफस्टाइल है। तो देखो जिनको राग नहीं रहा ना, तो उस प्रकार का आचरण सज पलता है, बुद्धिपूर्वक पालना नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि वो उस प्रकार का राग ही नहीं रहा। तो देखो 18,000 शील का पालन वो कैसे करते हैं, दोषों से कैसे बचते हैं। तो पहले दोष क्या है ना। तो देखो एक तो स्त्री, फिर तिर्यंचिणी, फिर नेली, ये 3 प्रकार की स्त्री हो गई जीवित। फिर काष्ठ की पुतली, है ना। और फिर चित्र की स्त्री, चित्र में, है ना, जैसे कोई फोटो लगी हो और देखे, है ना, कहीं जाहिर रास्ते पर लगी हो फोटो, तो इसको देखकर भी परिणाम बिगड़ सकते हैं कि नहीं? काष्ठ की पुतली हो तो उसको देखकर भी बिगड़ सकते हैं। तो ये भी, उसमें भी शील का दोष लगता है। पहले तो ये आ गया 3 प्रकार की ए, ठीक है। फिर उसमें भी 108 लगाना है, मन से, वचन से, काय से, कृतकारी तनुमोदना से, संभ्रम समा, ऐसे 108 प्रकार से। जीवित स्त्री के तिर्यंचिनी यानी गाय हो, जैसे वो जहां बैठे हैं उसके आसपास नजदीक में गाय या कुतिया या जैसे उनके होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, उनके बैठने के लिए बनाए गए स्थान, उससे कुछ नाम है रत्नकरण शावकाचार्य में। तो वहां कोई गाय या क्या? कुतिया बैठी है तो उसके निकट भी वसति का, हाँ वसति का नाम कहते हैं उसे, जो उनके रहने के लिए बनाई होती है, जिसके दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं होती, खुले रहते हैं, कोई भी आके बैठ जाए,
वहां अगर गाय भी बैठी है तो वो वहां नहीं बैठेंगे, है, क्योंकि देखो हमें आश्चर्य लगता है ना, लेकिन परिणाम बिगड़ने के अनेक स्थान है, और उनको अपनी 9 बाड़ का ध्यान रखना। क्योंकि चरणान योग ये कहता है कि घर में दादी हो, दादी, ठीक है, 80 साल की, और 10 साल का पोता हो, तो भी एक कमरे में एक साथ नहीं रहना चाहिए, है ना। भाई बहन हो, ऐसे किस्से आप आए दिन देखोगे, है, कि ऐसी घटनाएं होती देखते जाते हैं हम। तो क्यों जिनागम ऐसा कहता है कि कहीं पर भी दो लिंग में, है ना, तो ये इसकी सावधानी जरूरी है। तो ये महाव्रती है, कहीं मन में, कहीं कहीं वचन में, कहीं किसी भी प्रकार का अनुमोदना में कहीं पर भी दोष नहीं लगना, 108 प्रकार से बचना है। तो स्त्री कहा, फिर तिर्यंचिनी कहा, फिर देवी भी कहा। देवी क्यों? क्योंकि देखो हमने उपसर्ग देखे, सीता का जीव आके राम के ऊपर उपसर्ग करता है, आपको पता। जब सीता का जीव दीक्षा ले लेता है, उसके बाद उनकी समाधि पहली हो जाती है, और श्री राम का जीव जब मुनि दीक्षा लेके ध्यान में बैठे हैं, तब सीता पुरुष हो गए, मतलब देव बन गए हैं, ठीक है, सीता का जीव 16वें स्वर्ग में। उनको ये प्रीति है ना, प्रीति रामचंद्र जी के प्रति, तो उनको ये विकल्प आता है कि मैं इनको अभी मोक्ष जाने से रोकूं, और फिर अगले भव में साथ में मोक्ष जाएंगे, है ना। अभी वो देव आ जाएंगे स्वर्ग में और साथ में रहेंगे, और फिर अगले भव में साथ में मोक्ष जाएंगे, तो मैं कुछ न कुछ करके उनको ध्यान से डिगाऊं, है ना। तो वो देव था, लेकिन सीता का रूप लेकर, क्योंकि रामचंद्र जी को सीता के प्रति राग था ना पहले, गृहस्थ दशा में, है ना। तो अब वो सीता का रूप लेके उनको सामने नृत्य करना, उनके हाव भाव दिखाना, ताकि उनका ज्ञान टूट जाए और वो केवल ज्ञान लेने से रह जाए। लेकिन नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि वो देवी, देवी हो, स्त्री हो, या तिर्यंचिनी हो, तो उनसे भी 108 प्रकार से बचते हैं। चित्र हो से भी बचते हैं। फिर 108 में सब ले जाना, तो ऐसे बहुत मिलाकर इन गुणा गुणा करने पर 18,200 से बचते हैं, यानी 18,000 सील के गुणों का। अब उसके लिए उनको क्या करना? कुछ नहीं करना, अपने को अपने में सावधान रहेंगे, और पर का राग नहीं, अपने शरीर का राग नहीं रहा तो पर का राग कहाँ रहा, है ना। तो इस प्रकार से वो सहज ही फलता है। फिर परिग्रह, परिग्रह महाव्रत का पालन वो कैसे करते हैं? तो परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं, कौन बोलेगा? ये 5 पाप में सब चलाया है मैंने। 24। परिग्रह, हाँ शाबाश, है ना। परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी, ये 10 लक्षण धर्म की पूजन का पंक्ति है। परिग्रह 24 वेद। अब ये 24 कैसे होते हैं? अब 24 बोल दिया तो बोल दिया चेतन गांधी। 12 12। नहीं इसी बंद इसी बंद नहीं, 12 12 नहीं, 12 12 10 नहीं है, और सोचिए। हाँ, 10 धर्म। कौन 10 बोला? और 10 और 14। नहीं, 10 धर्म नहीं। परिग्रह के 2 10 और प्रकार के 14। भेद पड़ जाते हैं, अंतरंग और बाह्य बहिरंग। आणि अंतरंग 10 10 और बाह्य 14। आणि 14 अंतरंग अंतरंग और बहिरंग। हाँ 10 शाबाश, है ना। हाँ, 10 थोड़ा गिन लेते हैं ना परिग्रह। तो देखो 10 बाहर के में तो बाह्य की समस्त चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी? देखो शास्त्र में तो वस्त्र, पात्र, सोना चांदी, नौकर चाकर, जमीन, और धन यानी पशुधन, और दो क्या रह गया, फर्नीचर होगा शायद, धान्य, धान्य धन धान्य यानी रुपए और अनाज वगैरह। आज बाह्य आज के हिसाब से देखिए, हाँ ये बाह्य हो गए, है ना। तो आज के हिसाब से फिर बैंक बैलेंस, फिर शेयर बाजार का स्टॉक, फिर गाड़ी, है ना, बंगला मकान तो आ गया, है ना, कपड़े ये सब आ गए हैं। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं वो 10 में आ जाएगी, है ना। हमारे पास फर्नीचर है, जमीन है, सब आ जाएगा, है ना। पति पत्नी भी, है ना, जैसे पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, ये जीवित बाह्य परिग्रह है। बच्चे भी बाह्य परिग्रह है, ठीक है? तो ये समस्त बाह्य परिग्रह 10 प्रकार में करती थी, तो इसका तो त्याग उनको है ही। 14 में क्या है? ये 14वां में नाम बोलोगे? 14 में क्या है चेतन? मीना बहन कौन बोल पाएगा? एक 14 जरा में याद कर मिथ्यात्व,
14 नौ का अंतरंग में अब बोलना है, बहिरंग तो 10 हो कसाय, गए। अंतरंग में एक मिथ्यात्व, नौ नौ कषाय नौ और हाँ बराबर। नौ कसाय અવિરા और चार નો નોકસાય મિથ્યાત્વ અને चार कषाय। અનંતાનું બંધી चार ચાર અનંતાનું બંધી चार પ્રત્યાખ્યાન कषाय। અપ્રત્યાખ્યાન अभी ऐसा नहीं लेना, ऐसा लेना है, देखना। मिथ्यात्व, फिर क्रोधमान माया लोग चार कषाय, और फिर हास्य हाँ रति अरति शोक भय जुगुप्सा त्रिवेद નો पुरुष નોકસાય नपुंसक वेद, ये नौ नौ कषाय। शॉर्ट रंग परिग्रह है ना। देखो हाँ ये ही भाव हिंसा है। मिथ्यात्व और कषाय भाव हिंसा है, यही परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह। और सुनना, हम्म, वास्तव में बाह्य परिग्रह में मैंने 5 पाप में लिया था, फिर से बताती हूँ। परिग्रह किससे किससे है ना, तो परिग्रह की परिभाषा आचार्य देव ने तत्वार सूत्र में मूर्छा परिग्रह, ये मेरा हाँ है ऐसा ममत्वपना चार ही परिग्रह है, और उसके પરિગ્રહ प्रति राग। ठीक है, जैसे मेरे पास कुछ सोना है, ठीक है, तो मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं आप में से किसी के घर पे छोड़ गई कि मुझे शिखर जी जाना है, और मेरे पास 10-15 तोला सोना है, तो चोरी का भय है, आप मेरे इसको सुरक्षित रखना। मुझे बताओ, आपके घर में पड़ा है, वो परिग्रह आपका लगेगा कि मेरा लगेगा? मैं शिखर जी में हूँ, आपके घर में सोना पड़ा है, ये परिग्रह आपका होगा कि मेरा होगा? अब मेरा અમારા होगा, दूसरे है का ना। जिसने दिया અમારા उसका हाँ, जिसने दिया उसका, है ना, कि आप हाँ हमारे घर में पड़े हुए पर भी उसका परिग्रह हमें नहीं लगता, इसका मतलब बाह्य संयोग हो या नहीं हो वो मायने नहीं रखता, उसके प्रति ये मेरा है और उसके प्रति राग है, वही परिग्रह है। मूर्छा, उसके प्रति मूर्छा होना, वो ऊंचा परिग्रह है परिग्रह ना। आप कोई भी चीज किसी के है ना, मैं उदाहरण देती हूँ कि भाई गाड़ी है हमारे पास, चलानी सीखनी है ना बच्चों को, फिर क्या हुआ कि नई गाड़ी लानी थी, पुरानी बेचनी थी, तो पुरानी बेच ली, लील कर दी, है ना। लेकिन अभी नई आई नहीं थी, तो सोचा कि 1 महीना मुझे रखने दो, है ना, डील हो गई है, पैसे भी आ गए हैं, लेकिन 15 दिन, एक महीना, जब तक मेरी नई कार नहीं आए तब तक आप रख लो, कोई बात नहीं। और अब उस पर सीख रहे हो, और सीखते सीखते कहीं ठोक ली, ठोक गई और थोड़ा सा गोबा पड़ गया या थोड़ा सा स्क्रैचेस पड़ गया, है ना, मुझे कितना दुख होता है? बिल्कुल ज्यादा नहीं नहीं होता है ना, वो तो क्योंकि ये हमारी है नहीं ने हमारी है नहीं, और अपनी होती तो, है ना, अपनी होती तो अरे बाप रे, है ना। तो ये क्या है, जो अपना लगता है वही परिग्रह लगता है, उसका ही कष्ट लगता है ना। जो अपना नहीं है वो वास्तव में परिग्रह नहीं हो, पास पड़ा होने पर भी, है ना, ना उसके प्रति राग रहता है ना, है ना। तो मुनिराज बाह्य परिग्रह तो छोड़ते हैं, ये अपना लगना यानी क्या, यानी मिथ्यात्व, है ना। तो मिथ्यात्व जब तक नहीं छूटता, तो बाह्य परिग्रह हो या नहीं हो, है ना। देखो तिर्यंचों के पास बाह्य परिग्रह में कुछ नहीं, लेकिन वो अपरिग्रही नहीं कहे जाएंगे, है ना। परिग्रही कुछ भी नहीं है ना, अभी कितना है उसके पास, बाह्य में क्या है, ये कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो परिग्रही है। क्यों? क्योंकि उसको एक रोटी के प्रति भी राग है कि अरे मिल जाए तो ये मेरी है ना, मिल जाए तो मुझे 4 रोटियां छुपानी है। तो उसको जो राग है, अरे अपने बच्चे के प्रति, कुतिया के प्रति जो राग है, वो भी उसका परिग्रह है। तो सारे कषाय पड़े हैं कुत्ते को, तो अंतरंग परिग्रह भी पड़ा है, मिथ्यात्व भी पड़ा है, तो बाह्य में कुछ नहीं होने पर, नहीं तो फिर कुत्ते को या जितने भी तिर्यंस है, नारकी है, उनको अपरिग्रही कहना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, सारे के सारे जीव, पेड़ पौधे भी जीव है, वो भी परिग्रही है कुछ भी नहीं होने पर, क्योंकि अंतरंग परिग्रह सारे कषाय पड़े हैं। एक पेड़ को भी अभिप्राय में अंदर अंदर जो आकुलता है उसमें सारे कषाय पड़े हैं, है? नहीं तो वो धर्मात्मक। तो परिग्रह का मतलब है मूर्छा परिग्रह, આ यानी ये मेरा પરિગ્રહ है और उसके प्रति राग टूटे, अपरिग्रह है। तो मुनिराज को बाह्य में छूटा है क्योंकि अंतरंग में छूटा है ना, और हम्म अंतरंग में नहीं छूटा है तो बाह्य में छूटे हुए भी नहीं छूटा है। कोई गरीब हो जाए तो भी परिग्रह नहीं होता साथ में, लेकिन अंतरंग में तो चाह पूरी पड़ी है, तो चाहत है तो परिग्रह है। तो इस प्रकार समझना कि मिथ्यात्व जाए बिना परिग्रह जाता नहीं है, क्योंकि मैंने इसको छोड़ा, ये भी अभिप्राय में रहा, तो वो मेरा है ऐसी मान्यता रही, तो वो परिग्रह रहा। तो
पहले जाएगा मिथ्यात्व कषाय, और उसके साथ जब राग ही नहीं रहा तो बाह्य परिग्रह भी छूटता। मुनिराज को वस्त्र छोड़ने नहीं पड़ते, छूटते हैं, घर छोड़ना नहीं पड़ता, छूटता है, क्योंकि उसके प्रति राग रहा ही नहीं। तीन कषाय का अभाव हो गया, तो अब गृहस्थपना छोड़कर हमने लिया ना, गृहस्थपना छोड़ा मतलब उस संबंधी राग ही नहीं रहा, है ना। रत्नकरण शाकाचार्य में एक छंद है ना, कि हाँ। जिसको धन की चाह हो वो राजा की सेवा करेगा, राजा के पास जाएगा, नौकरी करेगा, ये करेगा, ठीक है। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए वो नौकरी करने क्यों जाएगा, है ना। ऐसे ही जिनको राग ही नहीं रहा घर का, कपड़ों का, वस्त्र का, तो फिर वो क्यों रखेंगे। तो राग नहीं रहा इसलिए वो छूटता है वास्तव में। तो ये है अपरिग्रहपणा, है, तो उनको अपरिग्रह महाव्रत रहता है। तो कितना परिग्रह, तिल तुष परिग्रह भी अष्टपाहुड़ में कुंदकुन देव ने लिखा है छंद कि तिल तुष, तिल यानी तल, है ना, तल होता है ना तल। गुजराती में, उसका हाँ। छिलका, तुष यानी उसका छिल के बराबर भी परिग्रह उनको नहीं रहता। नहीं। ठीक है, ये हो गया परिग्रह, ये हो गए हमारे 5 महाव्रत। ठीक है, अब समिति फटाफट देखते हैं, एक आध दो समिति हो जाए। क्रिया समिति बहुत नीचे सरल ज्वाइन है, है, 4 आंकड़ा चलना, ज्वाइन 4 में। कैसे चलना, 4 हाथ, 4। हाँ ठीक है, 4 हाथ जमीन देखेंगे, और मोटे मोटे तौर पर थोड़ा दूर भी नजर डालें, कोई अचानक से ना आ जाए, ठीक। दूसरा, ऐसी जगह पर पैर नहीं रखेंगे जैसे कोई पत्थर पड़ा है, आपने कभी पत्थर उठाया हो तो पता चले उसके नीचे कीड़े रहते हैं, है? जो बहुत टाइम से पड़ा हो पत्थर, चौमासा में पड़ा हो तो उसके नीचे कीड़े रहते हैं, तो पत्थर पर पैर रखेंगे तो नीचे के कीड़े मर सकते हैं। तो ऐसे स्थानों पर सूखे पत्ते पड़े हैं, उस पत्तों के नीचे क्या है दिखाई नहीं देता, है ना। तो ऐसे स्थानों पर कि जिसके नीचे क्या है वो दिखाई नहीं दे, वहां पर भी वो नहीं चलते, ठीक है। फिर गीले में जहाँ पानी भरा है, पानी के नीचे क्या है दिखाई नहीं देगा, पानी भी अनछना है, तो ऐसे पानी भरे हुए स्थानों पर जहाँ हरे पत्ते हो, हरे घास हो, गिरा हुआ हो, तो ऐसे स्थानों पर वो नहीं चलते। तो इस प्रकार 4 हाथ जमीन देखकर और ऐसे स्थानों को देखकर कि जहाँ पर कीड़े जीव जंतु हो सकते हैं वो टालते हैं, और इस प्रकार से वो चलते हैं। तो ये ईर्ष्या समिति उनकी फलती है। अंधेरे में नहीं चलेंगे, है ना? सूर्योदय के मुहूर्त पहले ही अपना स्थान निश्चित कर लेंगे, क्योंकि अचानक से स्थान नहीं आया और अंधेरा हो गया तो दिखेगा कैसे। तो सूर्यास्त के अंत मुहूर्त पहले ही वो अपना रुकना नक्की कर देंगे, और उजाला होने सूर्योदय के अंत मुहूर्त बाद ही वो गमन करना शुरू करेंगे, क्योंकि अंधेरे में दिखता नहीं है, और दिखागा नहीं तो ईर्ष्या समिति पलेगी नहीं। नहीं देखो, पड़ी। पता है मुनिराज, जैसे किसी के घर पे आहार दान हुआ, ठीक है, फिर घर का जो गृहस्थ व्यक्ति है वो उनका कमंडल लेके उनके साथ छोड़ने के लिए जाता है ना। जाता है। तो जो गया, हाँ, वो गया ना, उसे मुनिराज ये नहीं कहेंगे कि कि भाई तुम तू अभी वापस वापस जाओ। जा सकता, क्यों नहीं कहेंगे। ऐसा कहने में वो जाएगा, देखो वो आया था ना, मुनिराज ने नहीं बोला था कि तू चल, है ना, क्योंकि हो सकता वो एरिया वो समिति पूर्वक थोड़ी चलेगा, वो तो बिना देखे चले, है ना, वो तो उसको कहाँ आदत है श्रावक को। तो अगर अच्छा। वो बिना देखे चला और उसके पैर के नीचे कोई जीव मरा, नहीं भी मरा, है ना, लेकिन भाव तो हुए, तो उस प्रकार से निमित्त कौन बना, मुनिराज ने मुझे बोला था इसलिए मैं गए, है ना। तो ऐसी 108 प्रकार से त्यागी है, तो ऐसे किसी को बोलेंगे नहीं कि तू चल, और बोलेंगे नहीं कि तू वापस जा, क्योंकि वो वापस देख के जाएगा क्या, है ना। उनके निमित्त से किसी को नहीं देख के चलने वाले व्यक्ति को भी वो चलने के लिए नहीं बोलेंगे, है ना। तो और तो कोई परिस्थिति बनती ही नहीं, ठीक है। श्वेतांबरों में अभी साधन में बैठना वगैरह भी शुरू हो गया है ना, साधन में मतलब फ्लाइट में, या वो ऐसा तर्क देते हैं कि देखो, पहले के जमाने में घोड़े होते थे या ऐसे पशुओं पर सवारी होती थी, तो उनको कष्ट होता था, इसलिए पैदल चलना पड़ता था। अभी तो कार आ गई, कार को कहाँ कष्ट होता है, तो उस पर बैठ सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, रीजन तो ये है देख के चलना, तो कार कोई देख के नहीं चलाता, है ना। तो इसलिए वो अपने महाराज कोई साधन पे नहीं बैठते, तो इसको कहेंगे ईर्ष्या समिति। भी बहुत विस्तार देखना हो तो छडाला जी की देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन इतना सामान्य मोटे तौर पर अंधकार में नहीं चलेंगे, जहाँ जीव जंतु की ये हो वहां नहीं चलेंगे, और क्या बोला, हाँ,
जो भी बोला अभी बोल दिया है ना, बोल गए। हाँ, तो ये इस प्रकार से इरिया समिति। फिर ऐसना समिति, ठीक है। हित मित प्रिय वचन बोलेंगे, है ना भाई। हित मित और प्रिय क्या है वो समझना है। से पहले प्रिय न बोले, उसके पहले भी जरूरी है हित रूप बोले। सामने वाले जीव का कोई भी नुकसान हो ऐसे वचन नहीं बोलेंगे। अब हमें नुकसान किस चीज में दिखता है कि भाई कोई व्यक्ति गया कि महाराज मेरी तो आजीविका अच्छी नहीं चल रही है, दुकान ही अच्छी नहीं चल रही है, और पैसे ही नहीं आ रहे हैं, तो कुछ कुछ बताओ क्या करें, है ना। तो उनके महाराज ये नहीं बताएंगे कि कैसे अच्छा धंधा चले, क्यों? अरे वो तो उसके अहित का काम है। क्यों अहित का काम है? क्योंकि देखो पहले तो वो स्वयं अहिंसा महाव्रत के धारी है, तो उसकी मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से अनुमोदना ही नहीं करनी है तो बोलेंगे नहीं। लेकिन दूसरा, अगर उसका बिजनेस ज्यादा चलेगा तो वो संसार में ज्यादा घूमेगा, है ना, संसार में ही घुसा रहेगा। लेकिन वो तो ये कहेंगे कि भाई एक पाप की दुकान है, उसको बंद कर, धर्म की दुकान शुरू कर, है ना। तो ये तेरा धंधा चल जाए अच्छा, ऐसा आशीर्वाद देना उसके हित में नहीं है। और वो परिग्रह की अनुमोदना भी नहीं करेंगे, हिंसा की अनुमोदना भी नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से भी नहीं बताएंगे। लेकिन उसके भी अहित में है ना, कि वो धर्म के मार्ग में लगे, उसमें ही मात्र उसका हित है ना। तो उसके हित यानी धर्म के मार्ग में लगने के सिवाय और कोई वचन उनको नहीं बोलेंगे। अब हितरूप वचन बोलने के लिए कभी कड़क शब्द बोलने पड़े तो बोलेंगे, है ना। हितरूप हो गए। अब उनका दूसरा चांस है कि मित रूप। मित यानी क्या है? थोड़े शब्द। पहले तो थोड़े शब्द यानी कम से कम बोलेंगे, ज्यादा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा बोले, है ना। जितना कम बोलना पड़े उतने कम कम में सच्ची बात बताते हैं, ठीक है। तो हित रूप, मित रूप और प्रिय। अब अच्छे प्रिय मधुर वचन बोलेंगे, है ना। तो तीन हो गए। कि हो सके तो पहले तो हित रूप ही बोलना है, हो सके नहीं, पहले तो हितरूप ही बोलना है, उसके बाद कम बोलना है, उसके बाद हाँ, प्रिय बोलना है यानी मधुर वचन। कि किसी के सामने ऐसे कठोर वचन बोले तो बहुत बहुत मुश्किल से कोई धर्म के मार्ग में जुड़ने के लिए आता है। कठोर वचन सुनकर भाग जाए, है ना। तो पहले तो उसका कल्याण हो ऐसा उपदेश देंगे, फिर कम शब्दों में देंगे, और फिर प्रिय वचन से। छठाला जी की पंक्ति तो इतनी सुंदर है, मुझे बहुत प्रिय है। क्या है, मैं पढ़ती हूँ। जग सुहित कर, जग का हित करने वाले, सब अहित हर, सब प्रकार के अहित हरने वाले। देखो संसार के सारे कार्य अहित रूप है, और मोक्ष मार्ग के धर्म के सारे कार्य हित रूप है। हित रूप है। श्रुति सुखद सब संशय हरे। उसके धर्म के बारे में जितने भी संशय है उसको दूर करके सच्चे मार्ग में लगाने वाले। ब्रह्म रोग हर, रोग क्या है उसका? ब्रह्म, ब्रह्म यानी मिथ्या, यानी विपरीत मान्यता रूप रोग का हरण करने वाले वचन। मुख चंद्र ते अमृत जरे, यहाँ प्रिय वचन आ गए। उनके मुख रूपी चंद्र से ऐसे जैसे अमृत जर रहा है, ऐसे प्रिय वचन हो गए, मीठे शब्द हो गए। मुख रूपी चंद्र से अमृत जैसे मीठे वचन बोलते हैं, हित रूप बोलते हैं, और सारे संशय शंकाओं को दूर करने वाले, भ्रम रूपी रोग को दूर करने वाले वचन उनके होते हैं। कहीं पर भी संसार की अनुमोदना नहीं होती, कहीं पर भी परिग्रह की अनुमोदना नहीं होती। परिग्रह पाप है। देखो हम जैनियों को है हिंसा करने वाला पापी दिखता है, लेकिन परिग्रह वाला पापी